Okay, good morning, everybody. We will start in just 2 minutes. Let everybody join. Okay, I will be putting all you on mute as I start the lecture. Am I audible to everybody? Yes, sir. Okay, we will start in a minute as people are joining. Okay, please everybody put yourself on mute. Well, fine. Let me share the screen now. Okay, good morning, everybody. We will be starting with Maya software. So I will start with the very basics. We will be starting with the interface, how to navigate into the 3D space, okay, and how to create objects. So this session, in this particular session, we will be starting with all the basics of the software. And in case if you have any query, we will be having a separate question answer or doubt solving session as well. Even after the session, if you have any query or doubt, you can post it in the group, okay. There will be a specific timing in which you have to post the queries in the group. I will notify you accordingly. Yeah. So still the people are joining. Better be on time, everybody. Yeah. Anyways. So let's start with the basic interface. Now I'm assuming that many of you are using this software for the first time. So I'll teach you accordingly. Some of you might have used this software before. Okay. So it will be a kind of a small revision to them. Now, this is Maya software. Basically,
this is a 3D animation software. Now, what do you mean by 3D? Any object which has 3 dimensions, that is length, width, and height, is called as 3D. So basically, when we talk about 3D, suppose whatever you have around you, everything is 3D. For example, if you are looking at a table, the table has length, width, as well as height. So it has 3 dimensions. So 3D means 3 dimensions. Here we consider these dimensions as X dimension, Y dimension, and Z dimension. So this is the interface of the software. Let me start with the basic interface. If you can see the screen, this is the menu bar on the top where we have the common options like file, edit, create. From create, we basically create many primitives, standard primitives or basic shapes. यहाँ से हम basic shapes create करते हैं. Then we also modify those shapes. उसी shapes को हम थोड़ा सा modify भी करते हैं. Okay, so I will be speaking in English and Hindi as well. So everybody should understand and should be comfortable with that. Okay, so this is menu bar. Then we have this line which is called as a status bar or status line. Now, why it is called a status line? Before proceeding further, I just want to explain you the production process of 3D. Now, 3D is used in various fields. अगर advertising करना है, even in movie making obviously, and even mechanical simulations या मेडिकल सिमुलेशंस जो होते हैं, व्हेन यू सी टीवी एडवर्टाइजमेंट कि जैसे कोई मेडिसिन है, इट गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू द ब्लड, दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ 3D एनिमेशन. सो देयर आर वेरियस फील्ड्स इन व्हिच माया सॉफ्टवेयर इज यूज्ड. नाउ basically when you work in 3D, we have some basic steps or basic production process which we follow. Now let me explain you these in very short, and then we will start with the software again. First of all, whatever we create in software is called as modeling. So modeling is creating something. Suppose you are creating a house or creating a furniture. Okay, that is also modeling. You can create animated characters as well, or cartoon characters, or characters for gaming as well. So everything that you create is called as modeling. Once you model, then you can texture it. Now, what do you mean by texturing? Texturing or mapping, you can call it. Texturing is like creating materials. Now, suppose if you have created table and you want to assign a material of wood, then you can create it with the help of these 3D softwares. So that is the second part. Then after texturing, we have lighting. So we can create lights just like in the real world, artificial lights, also the natural lights like sunlight. If you want to create, you can create it in any 3D software. So the lighting part is there. After that, we also have camera, जहाँ पे हम कैमरा क्रिएट करते हैं, और कैमरा के ऑप्शंस जैसे एसएलआर डीएसएलआर कैमरा में जो ऑप्शंस होते हैं, सेम ऑप्शंस माया सॉफ्टवेयर के अंदर भी होते हैं या किसी 3D प्रोसेस 3D सॉफ्टवेयर के अंदर भी होते हैं, जहाँ पे आप उसका शटर स्पीड एडजस्ट करना है, फिल्म आईएसओ, अपर्चर, all these options are available. After camera, not exactly after camera as such, but this is one of the process. We also have a process called as rigging. Rigging means binding something together. तो यहाँ पे जब स्पेसिफिकली कैरेक्टर एनिमेशन करना होता है, आपने किसी कैरेक्टर को क्रिएट किया है, आपने कोई मॉडल बनाया है, तो यू कैन पुट बोन्स, जैसे रियल ह्यूमंस में होते हैं या एनिमल्स में होते हैं,
वैसे आप बोन्स भी पुट कर सकते हो और उसको कैरेक्टर के साथ जोड़ सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज रिगिंग, बाइंडिंग बोन्स विद द कैरेक्टर. सिर्फ कैरेक्टर के साथ ही नहीं, इवन यू कैन डू द मशीन रिगिंग. सो सपोज यू वांट टू एनिमेट अ मैकेनिकल आर्म और अ रोबोटिक आर्म, तो वहां पे भी रिगिंग आता है. सो रिगिंग इज बेसिकली बाइंडिंग समथिंग विद द अदर थिंग, बाइंडिंग टू थिंग्स टुगेदर. देन वी हैव एनिमेशन, जहां पे हम एक्चुअल एनिमेशन करेंगे टाइमलाइन पे. तो किसी कैरेक्टर का है एनिमेशन, तो उसमें दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैरेक्टर एनिमेशन. वी कैन हैव वॉक साइकिल, रन साइकिल, देन पोज टू पोज एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशंस. और जैसे नॉन कैरेक्टर, नॉन लिविंग थिंग है, तो भी उसको एनिमेट कर सकते हैं. कार है तो कार को एनिमेट कर सकते हैं. कोई ऑटोमेटेड डोर ओपन हो रहा है, मैकेनिकल कोई आर्म है, उसको भी एनिमेशन कर सकते हैं. तो दैट कम्स अंडर एनिमेशन. We also do have one more thing in all 3D softwares, that is dynamics. So dynamics basically deals with different kind of simulations, जहाँ पे हम क्लॉथ सिमुलेशन, हेयर सिमुलेशन, या फिर जैसे लिक्विड के सिमुलेशन दिखाना है, ब्लास्ट दिखाना है, दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन दिखाना है, तो ये सारे कैलकुलेशन हो या फिर इफेक्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं, दोज आर क्रिएटेड इन डायनामिक्स. देन वी हैव पार्टिकल इफेक्ट. स्पेसिफिकली आपने अगर जैसे स्पाइडरमैन 3 में देखा होगा, तो सैंडमैन को जो एनिमेशन किया है, दैट कम्स अंडर डायनामिक्स. ओके, प्लीज नोबडी टच द स्क्रीन. ओके, एंड द फाइनल पार्ट इज रेंडरिंग. रेंडरिंग इज बेसिकली क्रिएटिंग द फाइनल आउटपुट. जो भी आपने क्रिएट किया है उसका एक फाइनल आउटपुट, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, जो फाइनल आउटपुट हम निकालते हैं is called as rendering. Okay, so if anybody has any doubt, they can type in the chat. Okay, so I will answer that, and after the session, you can post it in the group. I will be posting the schedule. जैसे doubt solving sessions भी हम schedule करेंगे, उसमें भी solve हो जाएगा. So while session, just if you have anything to say, you can type in the chat box. Yeah. So these are the processes. Now we will start with the basic interface again. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दिस इज मेनू बार एंड दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस लाइन. जैसे मैंने अभी ये जो सारे आपको स्टेप्स बताए, या फिर यू कैन कॉल इट एज प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेप्स मैंने बताए, तो यहाँ पे स्टेटस लाइन में यू कैन सी मॉडलिंग. नाउ इन मॉडलिंग, ओके, मॉडलिंग में क्या होता है, जो भी आपको क्रिएट करना होता है उसके रिलेटेड टूल्स आपको यहाँ मेनू बार में दिखाई देंगे. ओके, तो जहां मैं स्टेटस मॉडलिंग पे रखता हूं, तो ऊपर के ऑप्शन मॉडलिंग के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. अगर मैंने स्टेटस में रिगिंग रखा, तो ये ऊपर के जो मेनू के ऑप्शंस है वो रिगिंग के हिसाब से चेंज हो जाएंगे. अगर एनिमेशन पे रखा, तो एनिमेशन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे. ओके, और एफएक्स मींस विजुअल इफेक्ट्स, या फिर डायनामिक्स बोल सकते हो. ओके, तो ये डायनामिक्स के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, तो इसको स्टेटस लाइन कहते हैं. इसके नीचे है शेल्फ. शेल्फ में आपको कई सारे टूल्स दिखाई देंगे. इथे खूप सारे टूल्स तुम्हाला दिसतील. सो यू कैन सी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ओवर हियर. जहां पे जो रेगुलर यूज होने वाले टूल्स है वो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो. सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी मॉडल पे काम कर रहे हो जिसमें आपको 4-5 टूल्स ही रेगुलरली लगने वाले हैं, तो जो रिपीटेड लगने वाले टूल्स हैं उनका शॉर्टकट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. तो इसको शेल्फ कहते हैं.
फिर यहाँ पे नीचे है, दिस इज कॉल्ड एज व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जहां पे हम काम करेंगे, जो 3D स्पेस हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज व्यू पोर्ट। लेफ्ट साइड में टूल बार है। अब ये जैसे धीरे धीरे आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, वैसे आपको कुछ दिन बाद ये जो नाम है ये समझ में आने लगेंगे। इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा ध्यान में रहने में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद यू नीड टू गिव 2-3 डेज, 2-3 दिवसानंतर तुम्हाला ते हळूहळू लक्षात राहील। 2-3 दिन बाद आपको वो ध्यान में रहने लगेगा। ओके, तो ये टूल बार है। यहाँ पे राइट साइड में चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर। अब जैसे मैंने कहा कि यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि इसको क्या कहा था सर ने, चैनल बॉक्स कहा था, लेयर एडिटर कहा था, अभी बस सुन लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वो चीजें आपको पता चल जाएगी। सो दिस इज चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर ऑन द राइट साइड। नीचे ये टाइमलाइन है जहां पे आपको फ्रेम्स दिखेंगे जो एनिमेशन में यूज होते हैं। तो फ्रेम्स एनिमेशन में यूज होते हैं। एनिमेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जब मल्टीपल फ्रेम्स सीक्वेंस में रन होते हैं तो वो कंटिन्यूस एक्शन लगता है, जैसे फ्लिप बुक है, या फिर इवन वीडियो भी क्या होता है, वीडियो को आप पॉज करते हो तो किसी फ्रेम पे पॉज होता है, और मल्टीपल फ्रेम को कंटिन्यूसली प्ले करते हो तो कंटिन्यूस वीडियो कंटिन्यूस मोशन लगता है। दैट इज द बेसिक ऑफ एनिमेशन। तो बीच बीच में जब एनिमेशन का आएगा तो एनिमेशन प्रिंसिपल्स भी हम देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, दिस इज टाइमलाइन, जहां पे फ्रेम्स है। उसके नीचे है रेंज स्लाइडर। दिस इज कॉल्ड एज रेंज स्लाइडर, याला रेंज स्लाइडर म्हणतात। रेंज स्लाइडर में क्या होता है, आप रेंज सेट कर सकते हो कि कितने फ्रेम्स लेने हैं आपको। 1000 फ्रेम लेने हैं, 5000 फ्रेम लेने हैं, और उसके साथ ही स्टार्टिंग फ्रेम क्या होना चाहिए और एंड फ्रेम क्या होना चाहिए, ये भी रेंज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इसको रेंज स्लाइडर कहते हैं। ओके, ये नीचे एक कमांड लाइन है और उसके नीचे हेल्प लाइन है। कमांड लाइन में यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट आप राइट कर सकते हो। मेल ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो मेल मीन्स माया एम्बेडेड लैंग्वेज, ये एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू कैन कॉल। तो कुछ इंटरएक्टिविटी देनी है, कनेक्शंस देना है, तो आप यहाँ पे जैसे पाइथन भी यूज कर सकते हो और मेल, ये 2 लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हो। नीचे हेल्पलाइन। हेल्पलाइन बस किसी भी टूल पे अगर मैं कर्सर लेके जाऊं तो वो टूल क्या है ये हेल्पलाइन में नीचे लिख के आएगा। सो एक छोटा सा हिंट देता है आपको, या किसी टूल को सिलेक्ट करता हूं तो क्या करना चाहिए इसके बारे में भी एक हिंट देता है। यहाँ राइट साइड में प्लेबैक कंट्रोल्स है, जहाँ पे प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड के सारे बटन्स है। प्लीज यहाँ पे स्क्रीन पे कोई टच मत करो और कोई आइकॉन्स मत निकालो, सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, नाउ we will start with the basic navigation। बेसिक नेविगेशन में क्या है, जैसे मैंने कहा ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट में जो एक्चुअली हम बनाते हैं, जो दिखता है ऑब्जेक्ट, वो व्यू पोर्ट में दिखता है। इट्स अ 3D स्पेस। अब मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ। स्पेस बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे 4 विंडोज ओपन होते हैं। स्पेस बार प्रेस करने के बाद यहाँ पे 4 विंडोज ओपन होते हैं। तो इनको अलग अलग व्यू पोर्ट्स कहते हैं। अब इसमें 2 तरह के व्यू पोर्ट्स है। एक है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे हम देखते हैं, जिस तरीके से हम 3D स्पेस को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सपेक्टिव। और बाकी के 3 जो है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है। इनको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। अब इसमें और पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ऑर्थो यानी सिंगल, आप किसी एक सिंगल डायरेक्शन से देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो, यानी सिंगल डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन से किसी चीज को देखना।
मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट पहले बनाता हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन को टच मत करो. ओके जिसने भी लिखा है, काइंडली डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. वो सबको डिस्टर्ब करेगा. हर एक का टाइम इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे एक बॉक्स मैंने बनाया है. अब इस बॉक्स को तो मैं किसी भी एंगल से देख सकता हूँ, जैसे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं. पर्सपेक्टिव के अंदर वैनिशिंग पॉइंट होता है. वैनिशिंग पॉइंट भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. एक सिंपल लैंग्वेज में अभी बताता हूँ. जैसे कि कोई चीज अगर नजदीक है तो वो बड़ी दिखती है, अगर आप उसको दूर लेके जाते हो तो वो धीरे धीरे छोटी दिखेगी. तो फाइनली वो एक वैनिशिंग पॉइंट में जाएगी. जैसे आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो और वो ट्रैक के एंड पे आप देखते हो तो इट वैनिशेस इनटू अ सिंगल पॉइंट. दैट इज कॉल्ड एज वैनिशिंग पॉइंट. तो पर्सपेक्टिव में क्या है, द लाइंस गो इनटू अ वैनिशिंग पॉइंट. और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वैनिशिंग पॉइंट नहीं होता है. अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से देख रहा हूं तो ये एक सिंगल डायरेक्शन. दिस एक्चुअली इट्स नॉट एन ऑर्थोग्राफिक, बट दिस यू कैन कॉल इट एज एन ऑर्थोग्राफिक. ऑर्थो मीन सिंगल. फ्रंट से देखना है या साइड से देखना है. Okay, everybody please keep your mics off. Okay, तो अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ या लेफ्ट से देख रहा हूँ या एग्जैक्टली टॉप से देख रहा हूँ, तो ये बन जाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस. एक सिंगल डायरेक्शन से मैं देख रहा हूँ. ओके अब नेविगेट कैसे करना है. जैसे मैंने स्पेस बार दबाया तो मैं चारों व्यूज को देख सकता हूँ. सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव में ही जाएंगे. अब मैं व्यू में रोटेट कर रहा हूं मैं व्यू को. तो रोटेट करने के लिए Alt प्लस नॉर्मल क्लिक, जो आप लेफ्ट क्लिक बोल सकते हो, लेफ्ट क्लिक करो और ड्रैग करो विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन. Alt प्लस लेफ्ट क्लिक एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन इसको रोटेट करो. ओके दिस इज फॉर रोटेटिंग द व्यू. तो यहाँ पे फॉर रोटेटिंग व्यू Alt plus left click and drag without releasing mouse button. ओके उसके बाद Alt मिडिल माउस बटन, जो स्क्रोलिंग होता है उसको एज अ बटन आपको क्लिक करना है एंड विदाउट रिलीजिंग यू ड्रैग इट टू पैन द व्यू. व्यू को पैन करने के लिए आपको उसको ड्रैग करना है. ओके तो यहाँ पे Alt प्लस मिडिल माउस बटन ओके एंड ड्रैग टू पैन व्यू. व्यू को पैन करने के लिए यूज होता है. फिर Alt और राइट क्लिक एंड विदाउट रिलीजिंग आप ड्रैग करो तो जूम इन एंड जूम आउट होता है. ये जूम इन और जूम आउट होता है. प्लीज यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ मत लिखो, बाकी सबको डिस्टर्ब होता है. क्लिक एंड राइट क्लिक ड्रैग टू जूम इन एंड जूम आउट. तो Alt प्लस राइट क्लिक एंड ड्रैग और जूम इन जूम आउट, जूम इन आउट. ओके आप सिर्फ स्क्रॉल करके भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया है तो F इज फोकस सिलेक्टेड. ये तो मैं ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तब आपको बताऊंगा ये सारे शॉर्टकट्स. तो ये बेसिक नेविगेशन हुआ. अब यहाँ पे आप 3 एरोज देख सकते हो. एक ग्रीन वाला एरो है, रेड वाला और ब्लू वाला एरो. ये डायमेंशंस है या एक्सिस है. रेड इज x axis. X axis is always represented in red color. This is y axis.
तो हाइट जो होती है यहाँ पे माया में वो y एक्सिस के अलोंग होती है एंड दिस इज z एक्सिस। तो इसका कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे अगर आई एम लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, अगर मैं z एक्सिस के डायरेक्शन से देख रहा हूँ तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जैसे स्कूल में हम ग्राफ पेपर यूज करते थे, ग्राफ पेपर में x और y होता था, हॉरिजॉन्टल x होता था और जो ऊपर जाता है वो y। और पेपर तो फ्लैट होता है, उसमें डेप्थ नहीं है, लेकिन इसमें 3D डेप्थ जो है वो z एक्सिस पे है, तो डेप्थ इज अलोंग z एक्सिस। अब अगर आप x के डायरेक्शन से देख रहे हो, इफ यू आर लुकिंग एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो यहाँ पे आपको y ऊपर दिखेगा और z एक्सिस यहाँ लेफ्ट की तरफ जाता दिखेगा। वो अपना बन गया साइड व्यू जो यहाँ पे दिख रहा है। अब जब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं तो फिर से 4 व्यूज दिखेंगे। आपको आपका कर्सर बस किसी व्यू पे लेके जाना है, व्यू पोर्ट पे लेके जाना है, फिर से स्पेस बार दबाओ तो उसको मैक्सिमाइज कर सकोगे। अगेन प्रेस स्पेस बार टू सी ऑल 4 व्यूज। जैसे कि टॉप व्यू है, टॉप पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन दैट व्यू, बस कर्सर लेके जाओ एंड प्रेस द स्पेस बार टू मैक्सिमाइज द व्यू। ओके, सेम फॉर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे नीचे ग्रिड है, दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, तो वो रेफरेंस के लिए है ग्रिड। आप चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हो। अब बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे, फिर मैं और कुछ चीजें आपको बताऊंगा बेसिक नेविगेशन रिलेटेड ही। सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ मेनू में क्रिएट नाम का एक मेनू है। आप क्रिएट पे क्लिक करो तो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में आपको स्टार्टिंग में दिखेगा नर प्रिमिटिव, पॉलीगॉन प्रिमिटिव, वॉल्यूम प्रिमिटिव। तो ये अलग अलग सरफेसेस के टाइप्स है। मैं एक एक करके ये भी आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो दिस इज द फर्स्ट डे, तो मैं बेसिक नेविगेशन लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पॉलीगॉन एंड अ नर्व, वो कैसे बनते हैं और दोनों की मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है और क्या अप्रोच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं पहले जाता हूँ पॉलीगॉन प्रिमिटिव में, और यहाँ बेसिक फंडामेंटल शेप्स है, तो प्रिमिटिव्स ही कहते हैं उसको। स्फीयर, तो स्फीयर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट हो जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद क्यू इज फॉर सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पे आपको क्यू इज फॉर सिलेक्शन टूल, तो उसका शॉर्टकट है क्यू। क्यू प्रेस करता हूं और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हुआ मतलब वो ग्रीन वायर फ्रेम में दिखाई देगा। इसके ये सेगमेंट्स है, आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर द सेगमेंट्स, व्हाट इज वायर फ्रेम, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। क्यू से क्या होता है, सिलेक्शन टूल आता है। फिर से मैं किसी वैकेंट स्पेस में क्लिक करता हूं टू डीसिलेक्ट इट। अब W, W इज फॉर सिलेक्ट एंड मूव टूल, और इस पे क्लिक करो तो ये ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे W इज सिलेक्ट एंड मूव, W इज सिलेक्ट एंड मूव टूल, और इस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे 3 एरोज दिखेंगे। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मान के चलो आपको x एक्सिस पे मूव करना है, तो टेक योर कर्सर एग्जैक्टली ऑन द टिप ऑफ x एक्सिस। आपको आपका कर्सर ये x का जो एरो है उसके टिप पे लेके जाना है, त्या एरोवरती घेऊन जायचा कर्सर, वहां पे क्लिक करो और विदाउट रिलीजिंग ड्रैग करो, तो वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे मूव होगा। ठीक उसी तरह सिर्फ y पे मूव करना है तो y पे लेके जाओ, उसके एरो पे क्लिक करो एंड विदाउट रिलीजिंग ड्रैग इट to move it only along y axis. Similarly for z axis. Okay.
अगर पर्सपेक्टिव में कर रहे हो, मैं यहाँ पे पहले आपको टूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आई एम यूजिंग पर्सपेक्टिव। यूजुअली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि 2-3 ऑब्जेक्ट्स को अगर मूव करना है तो बेटर यू यूज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आपको यूज करने हैं। अब ओके, नाउ ई फॉर रोटेट, यहाँ पे आर फॉर रोटेट नहीं है, ई फॉर रोटेट है। ओके, ई फॉर सिलेक्ट एंड रोटेट, ई फॉर सिलेक्ट एंड रोटेट, ये आपको ध्यान में रखना है। आर फॉर रोटेट नहीं है। तो आप ई प्रेस करो और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे ये टूल आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रोटेट टूल। तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए ये टूल यूज होता है। अब इसमें आपको सर्कल्स दिखाई देंगे। एक ग्रीन सर्कल है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ब्लू एंड रेड सर्कल एज वेल। तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया था, डब्ल्यू प्रेस करता हूं, दैट इज मूव टूल। दिस इज एक्स एक्सिस। अगर मुझे कोई चीज को एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, तो ये अगर मैंने एज ए एक्सिस लिया और इसके अराउंड मुझे रोटेट करना है, तो जो सर्कल आएगा रेड वाला सर्कल, वो इसको परपेंडिकुलर आएगा या नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। तो मैं ई प्रेस करता हूं तो यू कैन सी द रेड सर्कल ऑफ रेड इज लाइक दिस। यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं टू रोटेट दैट ऑब्जेक्ट अराउंड एक्स एक्सिस। तो ये मैं एक्स के अराउंड रोटेट कर रहा हूं। और अगर आपने थोड़ी देर पहले से ऑब्जर्व किया हो, तो यहाँ राइट साइड में आपको वो दिखता है कि मैंने एक्स वाई जेड पे कितना मूव किया है, एक्स वाई जेड के अराउंड कितना रोटेट किया है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दिखती है। तो जो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, वो अगर आपको प्रिसाइज करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हो। ये चैनल बॉक्स में, जैसे ही मैं चैनल बॉक्स में यहाँ पे लिखता हूँ 45 और एंटर करता हूँ, तो इस बॉक्स को मैंने प्रिसाइजली 45 डिग्री से रोटेट किया है। दिस इज फॉर प्रिसाइज रोटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वैसे मूव करना है तो भी अगर मैं स्पेसिफिक डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो उतने डिस्टेंस से वो मूव होगा। यूनिट्स पे भी आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ एक्स में लिखा 12, तो 12 क्या है, फीट है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, एग्जैक्टली क्या यूनिट है, उस पे भी हम आएंगे। जब नई फाइल बनती है तो स्टार्टिंग में ही हम उसका यूनिट सेट कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रोटेट टूल है, ई फॉर रोटेट एंड आर फॉर स्केल। अब ई फॉर रोटेट एंड आर फॉर स्केल। ओके, आर प्रेस करना है आपको, सिलेक्ट एंड स्केल। व्हाई आई एम कॉलिंग इट सिलेक्ट एंड स्केल, क्योंकि अगर ये डिसिलेक्टेड है तो यू कैन क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट इट और यहाँ पे स्केल टूल आ जाएगा। यहाँ पे स्केल टूल में अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे स्केल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये स्केल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल की भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ठीक उसी तरह जी एक्सिस पे भी स्केल कर सकता हूँ और वाई एक्सिस पे भी स्केल कर सकता हूँ। अगर मुझे तीनों डायरेक्शन में एक साथ स्केल करना है, तो आपका कर्सर ऐसे सेंटर में लेके जाओ, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करो टू स्केल द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन सायमल्टेनियसली। सगळ्या डायरेक्शन मध्ये एकाच वेळी स्केल करायचं असेल तर सेंटरला कर्सर घेऊन जायचा आणि तिथे क्लिक करून ड्रैग करायचं। सेम आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखाई देगी कि कितना स्केल किया मैंने। अब अगर स्केल टूल आप देखते हो यहाँ पे, तो एक छोटी सी चीज आपको दिखेगी, ये वाले ऐसे स्क्वायर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका क्या मीनिंग होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्वायर निकालता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। फिर से जैसे हमने स्फीयर बनाया था, ठीक उसी तरह क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव
और कोन, सॉरी क्यूब, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्यूब। ओके, क्यूब बनाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं स्केल करता हूं। स्केल में आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो मैंने इसे y पे स्केल कर सकता हूँ, x पे स्केल कर सकता हूँ, z पे स्केल कर सकता हूँ। ये जो नीचे एक स्क्वायर है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो z और x में स्केल कर रहा है, y एक्सिस में स्केल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x और z एक्सिस ये स्केल हो रहे हैं, उसकी जो हाइट है वो स्केल नहीं हो रही है। अगर y और x की बात करें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो स्क्वायर है उस पे क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूं तो x और y स्केल होंगे। जो एक्सिस हमने छोड़ दिया था जो कि z एक्सिस, उस डायरेक्शन में कोई स्केलिंग नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर मैं z एक्सिस और y एक्सिस की बात करूं तो उन दोनों के बीच में जो स्क्वायर है उस पे क्लिक करके ड्रैग करूं तो सिर्फ z और y स्केल होंगे, x एक्सिस जो कि हमने छोड़ दिया था उसके अलोंग डायमेंशन स्केल नहीं होंगे। तो ये था अपना स्केल टूल। उसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग से क्या देखा, Q से सिलेक्शन टूल, W से सिलेक्ट एंड मूव टूल। अब यहाँ पे भी ऐसे स्क्वायर दिख रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, जैसे कि y और x के बीच में ये स्क्वायर अगर मैंने क्लिक किया तो इसकी जो मूवमेंट है ये सिर्फ XY प्लेन में ही होगी, ये अलोंग z मूव नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर z और x के बीच का स्क्वायर मैंने लिया तो ये सिर्फ z और x प्लेन में मूव होगा, अलोंग y, अलोंग हाइट उसकी मूवमेंट नहीं होगी। फिर हमने देखा था E फॉर रोटेट, तो इसमें रोटेट टूल आ गया। R फॉर स्केल टूल, तो हमने यहाँ पे स्केल टूल भी देखा। अब सेम टूल बाकी के व्यू पोर्ट्स में भी आपको दिखेगा। अगर मैं दूसरे व्यू पोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे भी आपको स्केल टूल दिखने वाला है। तो ये टूल सारे व्यूज में, सारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको दिखाई देगा। हमने रोटेशन में भी क्या देखा था, अल्ट लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग टू रोटेट द व्यू, अल्ट मिडिल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग टू पैन द व्यू, अल्ट और राइट क्लिक एंड ड्रैग टू जूम इन एंड जूम आउट। अब इसमें और एक चीज है, जैसे अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूं एंड लेफ्ट क्लिक एंड इफ आई ड्रैग, आई एम रोटेटिंग व्यू, आई एम नॉट रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ व्यू को रोटेट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टेबल है, मैं मेरी पोजीशन 3D में चेंज कर रहा हूँ। और जब मैं रोटेट टूल लेता हूँ तो मैं अपनी जगह पे फिक्स हूँ और ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद जैसे हम इस बॉक्स को देख पाते हैं, एक सॉलिड बॉक्स जैसे दिखता है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले रिलेटेड शॉर्टकट्स मैं बताता हूँ, जिसमें आप न्यूमेरिक 4, सिर्फ 4 नंबर का जो ऊपर का बटन है, F4 नहीं, फंक्शन 4 नहीं, सिर्फ 4 को प्रेस करो तो ये वायर फ्रेम में दिखाई देगा। वायर फ्रेम यानी इसका ढांचा कैसे है ये हमें दिखाई देता है। और ये जो लाइंस है इनको सेगमेंट्स कहते हैं। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। किसी भी व्यू में मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, ये आ गया साइड व्यू, साइड व्यू को बड़ा करता हूं और 4 प्रेस करता हूं तो ये वायर फ्रेम में आ गया। वैसे ही टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, तो किसी भी व्यू में जाके आप वायर फ्रेम ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 इज फॉर वायर फ्रेम, ये न्यूमेरिक 4, सिर्फ 4 नंबर प्रेस करना है। उसके बाद है 5 आता है प्लेन शेडेड।
प्लेन शेडेड मोड। प्लेन शेडेड यानी कि अगर इसके ऊपर मैंने कुछ टेक्सचर लगाया है, कोई इमेज लगाई, जैसे ब्रिक वाला इमेज वगैरह लगाया है, तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन वायर फ्रेम भी नहीं दिखेगा। तो एक प्लेन ग्रे वाला शेड आ जाएगा, जो डिफॉल्ट अभी तक था, जो हमने देखा वो वाला शेड आएगा। तो यहाँ पे 5 इज फॉर शेडेड व्यू, 5 इज फॉर शेडेड व्यू। उसके बाद 6 इज फॉर शेडेड प्लस टेक्सचर। अगर इसके ऊपर मैंने कोई टेक्सचर लगाया होता, अभी कोई टेक्सचर मैंने लगाया नहीं है, जैसे मैंने ब्रिक की बात की थी, कोई ब्रिक का इमेज लगाया या टाइल्स का इमेज लगाया, अगर इमेज लगा होता तो इमेज के साथ वो सिर्फ 6 प्रेस करने के बाद ही दिखता। अभी तो कोई इमेज नहीं लगा है, इसलिए 5 एंड 6 आर लुकिंग द सेम। तो 6 इज बेसिकली शेडेड प्लस टेक्सचर और मैप, ऐसे इसको आप बोल सकते हो। ओके, ये करने के बाद चलो इसको थोड़ा मूव करता हूं, साइड में रखता हूं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्यूब, और एक क्यूब बनाया, आर प्रेस करता हूं, थोड़ा सा इसको स्केल करता हूं। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, यहां से उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखना है। जो बाद में मैंने क्यूब बनाया उसको मुझे मूव करके पहले वाले क्यूब के ऊपर रखना है। तो ये मूव टूल तो है ही, यहां से मैं डायरेक्टली ऐसे इसको मूव करके इसके ऊपर रख सकता हूं, लेकिन ये डायरेक्टली पर्सपेक्टिव में मैं कर रहा हूं। तो पर्सपेक्टिव विल नेवर गिव यू अ प्रिसाइज आइडिया कि वो कितना कहाँ पे मूव हो रहा है। वैसे तो ये मैन्युअली नहीं करते, इसके लिए अलाइन टूल भी है, लेकिन मान के चलो थोड़ा सा मैन्युअली करना भी है तो भी पर्सपेक्टिव में नहीं करना है। आपको यहाँ पे लग सकता है कि वो प्रिसाइज सेंटर पे है, वो बराबर आ गया, लेकिन आप दूसरे व्यू में जाके देखो तो वो सेंटर पे नहीं है। इसको जूम करो, आप देख सकते हो इनके बीच में गैप है, या फिर ये सेंटर पे होता भी नहीं है कई बार। जैसे कि आप मान के चलो ये यहाँ पे है, लेकिन आप पर्सपेक्टिव में ऐसे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक है, लेकिन किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाओगे तो ही पता चलेगा कि इसकी असल पोजीशन क्या है। तो पर्सपेक्टिव्स कुड बी डिसीविंग and orthographic projections will give you the precise location of that particular object. तो यूजुअली प्रैक्टिस ये होता है कि आप ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है, यहाँ इनमें जाके आप मूव करो, किसी भी 2 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर जाओ और यहाँ पे प्लेस करो, तो पर्सपेक्टिव में वो प्रिसाइज होता ही है। ये भी प्रिसाइज नहीं है क्योंकि हमने मैन्युअली किया हुआ है। एग्जैक्ट अगर मशीन प्रिसीजन चाहिए तो यहाँ पे अलाइन टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो बाद में हम देखने वाले हैं। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो ऑब्जेक्ट बनाए, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव में कुछ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, अब बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट बना है, जैसे 2-3 ऑब्जेक्ट बने हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे कोने में है, उसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और F प्रेस करता हूं तो दैट इज फोकस सिलेक्टेड। F इज फॉर फोकस सिलेक्टेड। तो यहां F इज फॉर फोकस द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट और एनीथिंग व्हाटएवर यू हैव सिलेक्टेड, ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। ओके, और कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, F प्रेस करो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे एक जगह पे, ठीक है। तो इसको मैं, चलो इसको साइड में रखता हूं, बाकी के ऑब्जेक्ट्स बना के देखेंगे। क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, और जैसे हमने स्फीयर बनाया है, क्यूब बनाया है, उसी तरह सिलेंडर है, सिलेंडर में सिलेंड्रिकल शेप आएगा, ज्योमेट्रिकल सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर मैंने अपना गैस सिलेंडर नहीं, ये ज्योमेट्रिकल सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, इसको भी साइड में रखते हैं। देन वी हैव क्रिएट कोन, so we have a conical shape, these are called as primitives, fundamental shapes। फिर यहाँ पे प्लेन, सिर्फ एक प्लेन आएगा, it's a flat plane, that also you can create।
फिर टोरस, तो यहाँ पे टोरस आ गया, ये टोरस का शेप है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे प्रिज्म है, सो वी हैव अ शेप ऑफ प्रिज्म। फिर पिरामिड, वी ऑल्सो डू हैव पिरामिड। फिर पाइप है यहाँ पे, तो पाइप भी आएगा, जहाँ पे थिकनेस कितना चाहिए इसको भी हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बस शेप्स में पहले दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आपका टास्क होगा इंस्टॉल करने के बाद वो होगा कि इन शेप्स को आपको क्रिएट करके देखना है। सबसे पहला तो काम यही है आपका कि इन शेप्स को क्रिएट करके देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट यूज्ड टू द सॉफ्टवेयर। फिर हेलिक्स है, सो हेलिक्स इज ऑल्सो देयर। Then we have soccer ball. Okay. And platonic solids. So those are named by the mathematician Plato. कुछ फंडामेंटल प्लेटोनिक सॉलिड्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के शेप्स आएंगे। इसके डिटेल में जब जाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो सारे शेप्स। ओके, नर्व और पॉलीगॉन के बीच में मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूं। अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूं अगर आपको डाउट है तो। पहली बात तो ये दोनों सरफेसेस है। इट अपीयर्स एज इफ दिस ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता है, बेसिकली ये सरफेस होता है। मेनली पॉलीगॉन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्कल्पटिंग रिलेटेड ज्यादा सिमिलर है। जैसे स्कल्पटिंग यानी आप मान के चलो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और उसको कट कर रहे हो, जैसे कि कोई रॉक है और रॉक को आप चॉप करते हो, इसको कट करते हो और उससे कार्व करके कोई स्टैचू बनाते हो। तो उस तरीके के जो टूल्स होते हैं, या फिर क्ले, अगर प्लास्टिक क्ले लिया उसको मोल्ड करके आपने कुछ बनाया ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह का जो अप्रोच होता है, तो सिमिलर टूल्स आपको पॉलीगॉन मॉडलिंग में दिखेंगे। नर्व मॉडलिंग डील्स विथ के फॉर एग्जांपल मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे दिवाली के टाइम पे जो दिए बनाते हैं, आकाश दिवा जला म्हणतो आपण, तो जो हेक्सागोनल होता है टिपिकल जो ट्रेडिशनल, उसमें कैसे होता है कि पहले वायर फ्रेम बनती है, जो बाम्बू स्टिक्स होते हैं छोटे छोटे, उससे पहले वायर फ्रेम बनती है, और वायर फ्रेम बनने के बाद उसके बीच में हम जिलेटिन पेपर या कोई भी जो ग्लासी पेपर है उसको चिपका देते हैं। तो ये अलग अलग तरह का मॉडलिंग हो गया। पहले हमने पूरा एक वायर फ्रेम बनाया और फिर बीच में जो एरियाज है वहां पे हमने सरफेसेस को चिपका दिया। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि नर्व में जो टूल्स है वो उस तरह का अप्रोच है, थोड़ा सा अलग। दोनों ही सरफेसेस ही है, हम दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यूजुअली अगर आपको थोड़ा सा स्मूथ टाइप कुछ शेप्स बनाने हैं, जैसे कि माउस क्रिएट करना है या बीटल कार, जो पुराने स्टाइल की कार थी बीटल, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर आपको क्रिएट करना है तो वहां पे कई जगह पे नर्व काम आएगा। पॉलीगॉन में भी आप कर सकते हो। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट मेथड यू आर फॉलोइंग, किस मेथड से आप कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगा। अब और एक लास्ट चीज मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, आपने ये राइट साइड में तो देखा होगा कि हमने इसको मूव किया तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर रोटेट किया तो भी दिख रहा है, स्केल किया तो वो भी वहां पे आ रहा है। इसकी विजिबिलिटी भी होती है ऑन ऑफ, इसको ऑफ किया तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा मतलब दिखेगा नहीं, ऑन किया तो ऑन भी हो जाएगा। अब उसी के नीचे ये इसको चैनल बॉक्स कहते हैं बेसिकली, जहां पे हम इसके एट्रीब्यूट्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स, हम देख पाते हैं पैरामीटर्स। इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं तो यहाँ पे कुछ
और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही ड्रैग करते करते नीचे आया तो यहाँ एक इनपुट्स ऐसे लिखा हुआ है, और इनपुट्स के नीचे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है। जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसका एक डिफॉल्ट नाम होता है। जैसे कि मैंने एक प्लेटोनिक सॉलिड बनाया तो उस और पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट है, तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट उसने लिया कि पॉली प्लेटोनिक सॉलिड 1, ये उसका डिफॉल्ट नाम है। मैं दूसरा बनाऊंगा तो पॉली प्लेटोनिक सॉलिड 2, ऐसे उसका नाम आ जाएगा। जैसे मैंने सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर को भी सेम पैरामीटर आएंगे। नीचे देखता हूं तो पॉली सिलेंडर 1। दूसरा सिलेंडर बनाता हूं, चलो और एक सिलेंडर बनाते हैं हम यहाँ पे। ये छोटा सा सिलेंडर है तो इसका नाम क्या है, पॉली सिलेंडर 2। तीसरा बनाया तो 3, 4 ऐसे आ जाएंगे। कोई भी शेप बनाने के बाद ये जो नाम उसका आता है, उस नाम पे मैं क्लिक करता हूं, जो लिखा है उस पे मैं क्लिक करता हूं तो उसके कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पे, और कुछ ऑप्शंस। जैसे मैंने ये प्लेटोनिक सॉलिड पे क्लिक किया, उसके नाम पे क्लिक किया तो और कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। ये पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स है। जैसे कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक क्यूब से, इसका नाम है पॉलीक्यूब 1। F प्रेस किया मैंने, फोकस सिलेक्टेड हुआ, पॉलीक्यूब 1 पे क्लिक करता हूं तो क्यूब में क्या होता है, विड्थ है, हाइट है और डेप्थ है। विड्थ, हाइट और डेप्थ, ये 3 पैरामीटर्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे। विड्थ अगर बढ़ानी है, मैं एक के जगह यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, इंटर करता हूँ तो ये विड्थ बढ़ गई। हाइट बढ़ानी है तो यहाँ एक के बजाय मैं 4 टाइप करता हूँ तो 4 टाइम्स इसकी हाइट बढ़ गई। ओके, और डेप्थ बढ़ानी है तो डेप्थ में भी मैं कुछ 2 टाइप करता हूँ तो इसकी डेप्थ भी बढ़ गई। अब यहाँ एक फिर से बुनियादी कंसेप्ट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये स्केल टूल से भी किया हमने और यहाँ से भी किया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, स्केल टूल से भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पैरामेट्रिक ड्राइंग आपको बनानी है, टू द स्केल आपको कोई ड्राइंग बनानी है, तो आप एकदम से स्केल में मत जाओ। आप पहले क्या करो, पहले इसकी लेंथ विड्थ हाइट में जाके वो चेंज करो। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर से मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूं। एक सिंपल क्यूब है जिसको मैंने स्केल नहीं किया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर तो स्केल XYZ 1 1 पे है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है मैंने। नीचे देखोगे पॉलीक्यूब 1 पे क्लिक करता हूँ तो विड्थ हाइट डेप्थ भी कोई चेंज नहीं की है मैंने। अब मैं विड्थ को करता हूँ डबल, 2 करता हूँ तो 2 यूनिट की है, 2 यूनिट की उसकी विड्थ है। मैं स्केल में जाता हूँ, स्केल में भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको स्केल नहीं किया है। इसकी विड्थ ही डबल थी, इसकी विड्थ ही 2 यूनिट की थी। अगर मैंने इसकी हाइट को 3 यूनिट पे रखा तो प्राइमरी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी फंडामेंटली हाइट ही 3 यूनिट की है। यहाँ पे देखो तो मैंने स्केल Y नहीं किया है, इसको स्केल नहीं किया है, ये पहले से ऐसा है, इसका ये मतलब हुआ। अब अगर मैं इसको स्केल करता हूं ऐसे तो ये स्केल में दिखाई देगा, लेकिन हाइट जो उसकी मेंशन्ड है वो तो उतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों का इफेक्ट कंबाइन हुआ है। यहाँ पे आपका जम्बलिंग बढ़ सकता है अगर आप टू द स्केल कोई चीज, जैसे कुछ टेबल बना रहे हो और आपको प्रिसाइज डायमेंशन का बनाना है, यहाँ पे आप 2 चीजों में गड़बड़ कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले जहां तक हो सके वहां तक आपको ये ही पैरामीटर्स को चेंज करना है, और सबसे लास्ट में फिनिशिंग टच देने के लिए स्केलिंग का यूज करना है। ये एक सजेशन है, जब काम आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा। हाँ, एक लास्ट चीज किसी बताता हूँ मैं, जो
मैंने आज जो भी बताया उसको एक क्विक रिवाइज करता हूँ। बस इतना ही है कि फाइल न्यू, नया सीन जो मैं शुरू करता हूँ, कल तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे सेट करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। नया सीन, न्यू फाइल, तो इसको न्यू सीन कहते हैं। और ये न्यू सीन का जो बटन है, ऑप्शन है, उसके सामने एक छोटा सा एक ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर सब ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो नई फाइल मैं बनाने वाला हूँ उस नई फाइल के कुछ पैरामीटर मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे कि वर्किंग यूनिट, लीनियर यूनिट सेंटीमीटर में है, तो जो मैं हाइट दे रहा था 2 या 3, तो वो सेंटीमीटर में थी। यहाँ अगर आप चाहो तो अभी से इसको चेंज कर सकते हो, मीटर या इंचेस में रख सकते हो। एंगुलर डायमेंशंस डिग्री में है, 3D रेडियंस भी होता है यहाँ पे। टाइम यानी फ्रेम्स पर सेकंड, ये भी जो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एनटीएससी, पाल, सीकैम जो लेना है उस हिसाब से बाद में आप सेट कर सकते हो, पहले भी सेट कर सकते हो। तो ये एक है। तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने आज देखा कि ये मेनू बार है, नीचे स्टेटस लाइन है, स्टेटस लाइन में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे मॉडलिंग, कोई ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसको मॉडलिंग कहते हैं। स्टेटस मैंने मॉडलिंग पे रखा तो ऊपर मेनू में ये मॉडलिंग के टूल आएंगे। स्टेटस मैंने रिगिंग पे रखा तो रिगिंग क्या आएंगे? रिगिंग यानी बोन्स को जोड़ना, किसी दो चीज को, बोन्स को ही ऐसे नहीं, किसी भी दो चीजों को एक दूसरे के साथ रिग करना यानी जोड़ देना, इज कॉल्ड एज रिगिंग। अगर मैंने एनिमेशन पे रखा तो एनिमेशन एंड लाइक दैट, एफएक्स है, रेंडरिंग है, तो ये सारे आ जाएंगे मेनू। इसको शेल्फ कहते हैं। यहाँ पे रेगुलरली यूज होने वाले टूल्स हम रखते हैं। यहाँ पे कई सारे टूल है, तो जो हमें 3-4 ही अगर लगने वाले हैं तो उन टूल्स को हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में है टूल बार, ये है व्यू पोर्ट और वर्क एरिया, जहाँ पे स्पेस बार देके मैंने चारों व्यू पोर्ट्स में देख सकता हूँ। बस कर्सर लेके जाओ, स्पेस बार प्रेस करो टू मैक्सिमाइज द व्यू पोर्ट एंड अगेन प्रेस स्पेस बार टू मिनिमाइज इट, तो दिस इज कॉल्ड एज टॉगल। यहाँ पे चैनल बॉक्स लेयर एडिटर है, ये टाइमलाइन है नीचे, यहाँ पे मैं फ्रेम्स होते हैं, रेंज स्लाइडर, रेंज स्लाइडर में फ्रेम्स की रेंज सेट कर सकता हूँ। अगर फ्रेम्स मुझे बढ़ाने हैं तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। अगर मुझे 20,000 फ्रेम्स चाहिए तो वो आंकड़ा बस यहाँ पे पुट करना होता है, इस पे तो बाद में आएंगे, तो उतने फ्रेम्स यहाँ पे सेट हो जाएंगे। कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग के लिए होती है, मेल, माया एम्बेडेड लैंग्वेज या पाइथन का स्क्रिप्ट राइट करने के लिए यहाँ पे नीचे हेल्पलाइन, जहाँ से कोई भी एक सिंपल टूल टिप आपको दिखता है, सिंपल सिंपल हेल्प डिस्प्ले होते हैं। तो ये नेविगेशन देखा, ये बेसिक इंटरफेस देखा। नेविगेशन में हमने देखा अल्ट प्रेस करता हूँ, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग टू रोटेट द व्यू, अल्ट मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग टू पैन द व्यू, अल्ट राइट क्लिक एंड ड्रैग टू जूम इन एंड जूम आउट। फिर हमने उसके बाद जो डिस्प्ले का था, कोई ऑब्जेक्ट को बनाया, क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव में जाके 4 प्रेस करता हूं तो वायर फ्रेम, 5 प्रेस करता हूं तो प्लेन शेडेड, 6 प्रेस करता हूं तो शेडेड प्लस टेक्सचर। Q से सिलेक्शन टूल, W से सिलेक्ट एंड मूव टूल, E से सिलेक्ट एंड रोटेट टूल, R से सिलेक्ट एंड स्केल टूल। ये चीजें हमने आज देखी है। और लास्ट में हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद यहाँ राइट साइड में जो चैनल बॉक्स है उसमें एक तो इसके ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स आते हैं। ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट यानी इसकी मूवमेंट, रोटेशन, स्केल क्या है, विजिबिलिटी भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और नीचे ऑब्जेक्ट पैरामीटर आते हैं कि स्फीयर है तो क्या पैरामीटर आएंगे, रेडियस का पैरामीटर आएगा, क्यूब है तो उसको लेंथ, विड्थ, हाइट आएगी। तो ये सारे पैरामीटर आते हैं। जैसे कि एक लास्ट वाला दिखाता हूँ कि हमने एक पाइप देखा था, तो ये पाइप जैसा लग नहीं रहा था, कुछ लोगों को लगता है कि ये पाइप नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इसकी हाइट को चेंज करो। ओके, सो लाइक दिस। सेक्शन रेडियस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। तो रेडियस 1 और थिकनेस, ये थिकनेस का पैरामीटर दिया हुआ है, दैट आल्सो यू कैन चेंज। तो ये मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, ये लिखा है उस पर क्लिक करो और मिडिल माउस क्लिक करके ड्रैग करो, तो ये ड्रैग से भी आप चेंज कर सकते हो।
तो पहला आपका टास्क ये है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो पहली बार यूज कर रहे हैं माया, उनका टास्क है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके देखना है और फिर मूव टूल से उनको मूव करके देखना है अलग अलग व्यू पोर्ट्स में। ओके, रिगार्डिंग अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आपके क्वेरीज है, आई विल पोस्ट द अपडेट्स रिगार्डिंग दैट इनटू द ग्रुप, जिसमें आपको एक टाइम दिया जाएगा जहां पे आप ग्रुप में क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, प्लस we will also have a doubt solving session as well. ठीक है, have a nice day. Okay, see you.